हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस फाइंड। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ क्लास 9 मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 12 दैट इज हेरोन्स फार्मूला की एक्सरसाइज 9.12.1। ओके, इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हैं हेरोन्स फार्मूला से रिलेटेड, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसकी जो एप्लीकेशंस हैं हेरोन्स फार्मूला की उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड करता हूँ, क्या है ये। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है लाइक दैट, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में। हियर आई मेंशन लाइक दैट, ऐसा एक ट्रैफिकल सिग्नल है ए बी सी, ओके, जिस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। यूजिंग हेरोन्स फार्मूला इसका एरिया यू फाइंड आउट करना है इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। सो हियर वी राइट गिवन perimeter of triangle delta is used to indicate a triangle ABC is 180 centimeter. Side of triangle ABC find out करनी है हमको। So use of formula of perimeter of equilateral triangle, perimeter of triangle ABC can be 3 into side because ABC is an equilateral triangle. Okay, so we should use formula of 3 into side perimeter. Now perimeter is given 180 centimeter and 3 multiply side. Okay, this 3 comes left hand side. Here it is in multiplication, then it comes in left hand side in divide. So side equal to जाएगा 180 divided by 3, that is 3 1 3 3 is 80. तो side is equal to 60 centimeter. Okay, so here A is equal to B is equal to C, that is 60 centimeter side. Okay, so find S. To apply before Heron's formula we have to find S. S find out करेंगे हम इसका। So S find करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? S is equal to the perimeter divided by 2, that is perimeter is given 180 and that is 90 centimeter. Okay, 90. So S minus A equal to S minus B equal to S minus C equal to हो जाएगा 90 minus 60, that is 30. Okay, that is our 30 because we apply S minus A. So here we write while using Heron's formula, area of triangle ABC S minus A bracket S minus B bracket S minus C. Clear? So put the value of all these S minus A, S minus B, S minus C. So here 90 multiply 30
multiply 30 multiply 30. So we can factorize this 90. 3 multiply 30 multiply 30 multiply 30 multiply 30. So here two pair of 30. So from each pair we take one. So 30 multiply 30 under root 3, that is 903 centimeter square, because area comes in square units. Okay, so we write here hence area of board is 903 centimeter square. Okay, this is our required area of equilateral triangle or board. So another, now we are going to solve, that is question number 2. मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ देता हूँ. एक्चुअली है क्या क्वेश्चन नंबर 2 में एक फ्लाईओवर है, उसके साइड में ट्रायंगुलर साइड में एक एरिया है जिस पर एडवर्टाइजमेंट करना है. ओके, उस एडवर्टाइजमेंट का जो ईयरली रेट है वो है 5000 मीटर स्क्वायर पर ईयर. ओके, 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का रेंट कितना है उसका 5000. अब हमें निकालना कि 3000 का उसका 3 मंथ्स का उसका रेंट कितना होगा उसका. ओके, सो आई हैव टू रफ दिस, देन आफ्टर वी रफ इट, देन आफ्टर वी गो थ्रू सेकंड क्वेश्चन. ओके, now rub this also. Now here let a triangular ball is ABC whose one side 120 meter, 122 meter, 120 meter and 22 meter. Okay, this is the dimension of the balls. Okay, जो ball है उसकी dimension ये है. First given, what be given है, given cost of advertisement rupees 5000 meter square, cost of advertisement for 1 year. 1 year के लिए कॉस्ट कितनी 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. सो फर्स्ट वी फाइंड कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट for 3 months. ओके, इन यूनिटरी मेथड, आपने यूनिटरी मेथड में पढ़ा होगा, जब हमें बहुत सारा उसकी वैल्यू थी वो थिंग्स की, तो हम एक थिंग्स की निकालते हैं, उसमें फिर जो रिक्वायर्ड नंबर पूछ रहा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं. सो हियर वी हैव टू डिवाइड. सो हाउ कैन वी फाइंड इट वैल्यू 5000 divided by 12 because 1 year is equal to 12 months multiply by 3, because we have to find the value of four. Here you divide, you got ओके. अभी ये कॉस्ट आई है उसकी पर मीटर स्क्वायर की, कितनी कॉस्ट आई है पर मीटर स्क्वायर की. अब 1 मीटर तो वो लेगा नहीं, तो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल एरिया ऑफ दिस बॉल. सो हियर वी फाइंड S 22 plus 122 plus 120 divided by 2. Okay,
ना सम करेंगे हम इसका टोटल करेंगे तो दैट इज 264 divided by 2, that is our 132 meter. Okay, now we have to find out s minus a, s minus b, s minus c. So put the value of here, let here a, b and this is c. Okay, so find s minus a, 132 minus 122, that is 10. S minus b, 132 minus 22, that is 110. S minus c, 132 minus 120, that is 12. Okay, here write by using Heron's formula. So Heron's formula is that area of triangle ABC, that is under root s minus a, s minus b, ब्रैकेट में रहेंगे सभी s minus c. Okay, put the value of these, all these here. S is 132, 10, s minus a, s minus b here is 110, and at s minus c is 112. Okay, this is the value. Here we have to factorize. हम इसका क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे. क्या कर लेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे इसको. So if we factorize it, we get here, look, first 2 multiply 3 multiply 2 multiply 5 multiply 11. I think this is not done, so we can एक 2 हटा देंगे इसमें से. एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको. ठीक है, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 11. Here 2 multiply 5, here 2 multiply 5 multiply 11, here 2 multiply 2 multiply 3. Okay, this is the factorization of this number. So make a pair of these, all these factors. So we can pair it. Here one pair of 11, one pair of 5, another one pair of 2, one pair of 2, another, that is another pair of 3. So here pair is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 5. इनमें से हम क्या करेंगे, each वन को एक पेयर, हम पेयर में से एक वैल्यू को आउटसाइड ले लेते हैं. देखिए कितने पेयर है, 2 के 3 पेयर है. 2 multiply 2 multiply 2, 3 के हमारे पास एक ही पेयर है, तो 3, 5 का भी 1 पेयर है हमारे पास, एंड 11 का भी 1 पेयर है. ओके, सो इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या आएगी हमारी. देखिए मल्टीप्लाई करिए, 11 5 जा 55, 11 3 जा 165, 55 3 जा. इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 320 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ जो बॉल है वो क्या आ गया, ये आ गया. तो ये जो कॉस्ट थी हमारी वो 1 मंथ की निकाली थी, तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 मंथ्स. ओके, 3 मंथ्स की कॉस्ट निकालेंगे तो हमेशा रेट और एरिया का या पैरामीटर का हम मल्टीप्लाई करते हैं. रेट का हमेशा मल्टीप्लाई होगा, तो
1250 मल्टीप्लाई 1320, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी इसकी वो क्या आएगी? हियर आई कैन राइट 165 रुपीज। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 60,50,000। उसकी कॉस्ट जो आएगी 3 मंथ की कितनी आएगी? 60 लाख। ओके, सो आप हियर यू कैन राइट इट, दिस इज द रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर? So in this way we have to solve the question number 2. Okay, now we have to solve the question number 3. This is our question number 2. We have to solve a question number 3. If question is easy, then no. So question number 3, we have to find the value of this. Now मैं रब कर रहा हूँ इसको, आई होप कि आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्या है? इजी क्वेश्चन है जो हम करेंगे। इसमें क्या है? एक स्लाइड बनी हुई है जो कि कैसी है? ट्रायंगुलर इन शेप है। उसको पेंटेड किया गया है। क्या किया गया है? पेंट करके उस पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इसको उसकी जो हमें साइड्स दी हैं, देखिए हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए जो ट्रायंगल है वो जो स्लाइड है वो ट्रायंगुलर शेप है आपकी, और उसको वो ट्रायंगल का हमने नेम दे दिया ABC। ओके, इसकी साइड्स है 15 मीटर, 6 मीटर एंड 11 मीटर। ओके, ये उसकी रिस्पेक्टिव साइड है। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर। हमें एरिया निकालना पेंटेड ऑफ कलर का। ओके, क्लियर? तो इसका जो एरिया निकाले, लेट ए हमारा ए है, ये B, ये C। ओके, first we have to find S. So here S should be A plus B plus C divided by 2. Put the value of ABC 15 plus 6 plus 11. Okay, divided by 2. So we get sum is equal to near about 32, 16 meter. Now we have to find S minus A. That is 16 minus 15, 1. S minus B, that is 16 minus 6, 10. S minus C, that is 16 minus 11, that is 5. Okay, क्या आएगा? 5 आएगा इसकी। ओके, so put the value by using Heron's formula। आप लिख सकते हैं यहाँ पर y using Heron's formula का यूज करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? अंडर रूट S माइनस A, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। गॉट हियर अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10। ओके, सो हियर फैक्टराइज, इसको हम क्या करेंगे? फैक्टराइज कर लेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5।
So here we make pair, put it outside. Okay, outside ले लेंगे हम इस वैल्यू को 2 multiply 2 multiply 5 under root 2. So that is 20 under root 2 meter square. कितना आएगा? तो आप लिख सकते हैं, so the required area of balls is, hence the painted area of ball is 20. Here you can write like that. उसको हम इस तरीके से लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं फोर्थ वाला आपको नहीं करवा रहा हूँ, इजी है. आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, सॉरी आइसोस्केलेस नहीं, पैरामीटर दिए, थर्ड साइड निकाल लेगा. हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 5, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा वाला क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. ये रब करेंगे हम इसको. ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा. यस, क्वेश्चन नंबर 3. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. इसी एक्सरसाइज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आने भी चाहिए, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिए. हमें जो साइड का रेशियो है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ, रेशियो में दिया है, एंड इट्स पैरामीटर 550. ओके, 540 हमें निकालना इसका एरिया. ओके, हियर वी राइट गिवन रेशियो ऑफ साइड्स, क्या दिया है हमें, 12 रेशियो 17 रेशियो 25. ओके, ये हमें दिया होगा. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जब भी आपको इस रेशियो में आपकी साइड्स आए तो यू हैव टू इनको किस में मान लीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में मान. लेट साइड्स आर 12x 17x एंड 25x. ओके, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम. ट्रायंगल ए बी सी, इसकी जो पैरामीटर दी है वो 540 दी हुई है. ठीक है, तो हमें साइड्स निकालनी है. पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स. क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड. तो ये हमें पैरामीटर दी हुई है कितनी, यार 540. आप यहाँ पे लिख देना पैरामीटर इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर. इज इट मीटर और सेंटीमीटर. ओके, 12x प्लस 17x प्लस 25x. सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे, वैल्यू आएगी इसकी 54x. अब इसको आप इसको मूव कराएंगे, इसको हम मूव कराएंगे तो इस तरफ आएगा. तो x की वैल्यू आ जाएगी 540 डिवाइडेड बाय 54, दैट इज 10 सेंटीमीटर. x इज इक्वल टू 10. ओके, x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस हियर यू कैन राइट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस साइड्स आर वंस. देखिए ये x है तो x का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें. 12 मल्टीप्लाई 10, 70 मल्टीप्लाई 10 250 मल्टीप्लाई 10. ओके,
ये रिस्पेक्टिव साइड्स आ जाएंगी, तो यहाँ साइड्स हम लिख सकते हैं इसकी, ये कितनी हो जाएगी 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। सो वी कैन फाइंड एस, वी कैन फाइंड हियर एस। एस क्या होता है, हमें पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 270 सेंटीमीटर हो जाएगा एस। तो वी फाइंड एस माइनस ए दैट इज 270 minus 120 is equal to 150. S minus B that is 270 minus 170 that is 100. S minus C that is 270 minus 250 that is 20. Clear? Yes. अब हम लिखेंगे by एरिया निकालना by using Heron's formula. ओके, हेरॉन्स फार्मूला का यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा अंडर रूट हेरॉन्स फार्मूला का S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ओके, अब जो वैल्यूज हैं उनको हम पुट कर देंगे, रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उनको हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। क्लियर? सो पुट करते हैं, वैल्यू क्या आएगा हमारा, देखिए इसकी जो वैल्यू है 270 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 20, ये है वैल्यूज। तो हम ईयर क्या करेंगे फैक्टराइज कर लीजिए इसको, सिंपल सा है, अंडर रूट में जब भी आए तो फैक्टराइज कर लीजिए उसको। सॉल्व करते हैं इसको हम ना, फैक्टराइज करने पे क्या आएगा इसको 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, इसका आएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, इसका 10 मल्टीप्लाई 10, इसका 2 मल्टीप्लाई 10। ओके, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। देखिए हियर पेयर बना लीजिए, 10 के कितने पेयर बनते हैं देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए एक पेयर 3 का, दूसरा पेयर 3 का, एक पेयर 2 का, अनदर पेयर 5 का, एक और 2 पेयर आपके 10 के। ठीक है, ये पेयर बन गए, इसको बाहर निकाल लीजिए, सभी पेयर्स को हम क्या कर लेंगे बाहर लिख लेंगे, क्योंकि सभी के पेयर्स बन चुके हैं, अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। तो एक वैल्यू आएगी बाहर, देखिए जो वैल्यू आएगी उसको लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, यही तो आनी वैल्यू बाहर। ओके क्लियर, ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 10,000, तो इसका जाएगा 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं, एक लाइन ऐड कर दीजिए यहाँ पे, हैंस required area of ball is 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस। आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत शानदार रहेगा। ओके, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, क्लियरली लिखनी है सारी चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें कर लीजिए, इनको फाइंड आउट कर लीजिए S माइनस ए, क्योंकि आप अगर एट ए टाइम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी आएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, मेरे यूट्यूब चैनल DS Find को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।